ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਗਮੀ ਭੰਡਾਰ, ਸਭ ਦੁਖਨ ਕੋ ਹੰਤਾ, ਸਭ ਸੁਖਨ ਕੋ ਦਾਤਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ के दाते कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तिन्हां दे पावन दरबार गुरुद्वारा बादशाही बाग पातशाही 10वीं विखे और समूह संगत सजे हुए अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भरन वास्ते पहुंचे हो। सतगुरु जी की रहमत कृपा सदका रब्बी इलाही बानी दे शब्द कीर्तन का लाहा जिन्हें प्राप्त किया है। आओ शब्दी विचार विच भी मन बिरतियां इकागर रखिए। गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ, विचार आरंभ हो सके। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन साहिब सतगुरु गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी, इन्हां दे पवित्र मुखार बिंद तो उचारण की हुई बाणी श्री आनंद साहिब जी लड़ीवार विचार और संगत के नाल सांझी की जा रही है। हजूर की मेहरामत हुई है। इस पावन बाणी दियां 40 पौड़ियां विचों 6 पौड़ियां तक का पाठ ते विचार असीं दृढ़ कीता है, समझिया है।
ਅੱਜ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਹਿ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅਸਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਭਰਿਆ ਕਵਿਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਜੈਸਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, पूछत पथक तेह मार्ग ना धारै पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन सहजाई है। कोई किसी राह वित्ते खलोता होया दूजे नूं अपनी मंजिल ते जाण दा राह पुछदा है, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਰਾਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੰਘਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। तो भाई गुरदास जी लिखते ने, प्रीतम कह देश कैसे बातन सहजाइए। तो प्रभु दे प्यारे दे देश फिर किहड़ियां गल्लां नाल जावेगा। जदों गुरु वल्लों दसे हुए मार्ग रस्ते ते पैर ही नहीं धरदा, उस पासे तुरदा ही नहीं, पुछ छड्डदा है पर तुरदा ही नहीं। फिर दूजी उदाहरण उन्होंने दी है, पूछत है वैद खात औखद न संजम सह, कैसे मिटै रोग सुख सहज समाइए। कोई शरीर नूं रोग लगा है, वैद हकीम डॉक्टर कोल चलिया गया, उन्हें दवाई दस दी, नाल उन्हें कुछ परहेज करने वास्ते भी आख्या भी दवाई ये तां असर करेगी भी जे आप परहेज भी करेगा। तो वैद हकीम को जाकर के इसने दवाई पूछ भी ली, पूछत है वैद, वैद को जाके पूछ लिया आ रोग है, पर खात औखद ना संजम से, पर संजम दे नाल परहेज करके दवाई खाधी नहीं। ते डॉक्टर नूं आ करके उलांभा देवे भी तेरी दवाई नाल ते मैनूं फर्क ही कोई नहीं पैंदा, तू हज़ारां दे टेस्ट लिख देंदा है, हज़ारां रुपये दवाई ते लग जांदे ने, तैनूं दे देने आ, कोई फर्क ते पैंदा नहीं है। तो अजिहा उलांभा आकर के वैद नूं डॉक्टर नूं हकीम नूं देवे ते इस उलांभे दा की करे जदों कि उन्हें संजम नाल दवाई नहीं खाधी, कोई परहेज ही नहीं रखिया। तो फिर कैसे मिटै रोग सुख सहज समाइए, पर किवें रोग मिट सकदा है जे संजम नाल उस औखद नूं खाधा ही ना गया। फिर तीजी उदाहरण देंदे ने, पूछत सुहागन है कर्म दुहागन कै, हृदय विचार कत सहजा बुलाइए। कोई संसारी जीव स्त्री किसे सुहागन नूं जा करके पुछदी है भी किवें पति नूं प्रसन्न कीता जांदा है, किवें खुश रखिया जांदा है, किवें उहदी सेवा करीदी है, किवें उहदी आग्या विच तुरीदा है। तो ये सारा कुछ सुहागन नूं जा करके पुछ लिया, उन्हें दस दिता। पर जदों कर्म करन दी वारी आई ते उदों कर्म जिहड़े ने दुहागना वाले कीते। रोज किसी ना किसी छोटी जी गल तो झगड़ा पा गया, तो अंदर विचार भाव माड़ी बिरती लैकर के बैठी रही, तो फिर किवें पति की सेजा ते पहुंचे भाव, किवें उहनूं भा जावे, किवें उहनूं प्रसन्न कर सकती है। तो इस तरह भाई गुरदास जी निचोड़ देंदे हुए आखदे ने, गाए सुने आखे नीचे पाइए ना परम पद।
गुर उपदेश गह जो लो ना कमाईए। वो आखते ने भी कोई उची उची शब्द गा रहा है, कोई उसनू अखां बंद करके सुनी जा रहा है, पर पाइए ना परम पद। इस तरह परम पद की प्राप्ति नहीं होने लगी, इस तरह उच्चा आत्मक दर्जा नहीं मिल सकना, इस तरह प्रभु के घर विच नहीं प्रवान पै सकना। तो फिर प्रवान किवें होईदा? प्रवान होने का ढंग यह है, गुर उपदेश गह, गुरु का उपदेश ग्रहण करके जो लो ना कमाईए। जिन्ना चिर उहदी कमाई ना की जाए उन्ना चिर ते फिर सवाल बनया ही रहेगा कि प्रीतम कै देश कैसे बातन सजाइए। इस करके भाई गुरदास जी लिखते हैं कि गुरु का उपदेश सुन करके इनू ग्रहण करना है तो उहदी कमाई करनी है। फिर जिहड़ा है एक सुने हुए दा गाए हुए दा जिहड़ा है ये असर भी पवेगा ते इहदा फिर जिहड़ा है जीवन विच लाभ भी होगा। हाँ, उंज बाकी जुबान तो कहन वालियां दी गिनती बथेरी, जो गुरु अमरदास महाराज आखदे ने आनंद आनंद सब को कहे। कहन दियां गल्लां भी आनंद है हर कोई आखी जा रहा है, पर असल आत्मक आनंद हुंदा की है ते मिलदा किथों है? आनंद गुरु ते जानिया। ये ते गुरु तो जानिया जांदा है, गुरु तो समझिया जांदा है। जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया। जिदे ते आप वो कृपा करे, जिदे तो आप मेहर कर देवे, दया कर देवे, वो इस आनंद नूं जानदा है भी ये आनंद हुंदा की है। इस पवित्र बाणी दे आरंभ विच भी आनंद अखर गुरु अमरदास महाराज ने वरतिया है ते 40 पौड़ियां दे विच कई बार जिहड़ा है इस आनंद नूं परिभाषित करन वास्ते सतगुरु जी ने अखर वरतिया है। ये 40 पौड़ियां दा इक्को सिरलेख आनंद भी है ते सतगुरु गुरु अमरदास महाराज अज इत्थे रहमत कृपा करके सानू समझाउंदे हन कि जिस आत्मक आनंद की प्राप्ति मैनू हुई है, यह आत्मक आनंद पहला परिभाषित कर लवो भी यह हुंदा की है, नू समझ लवो इसकी प्राप्ति किस ढंग तरीके नाल होनी है, फिर उहदे वास्ते यतन करना है। तो हजूर आखदे ने यह आनंद जिहड़ा है गुरु तो जानिया ते समझिया जांदा है, जिस उत्ते प्रभु मालिक कृपा कर देवे, मेहर कर देवे। तो इस आनंद नूं परिभाषित करने वास्ते गुरु अमरदास महाराज ने इस पौड़ी दीआं अगलियां 2 पंक्तियां इन्हां ते ध्यान देने वास्ते कहा है। हजूर आखदे ने आओ सुनो भी ये आनंद जिहड़ा गुरु तो जानिया जांदा है ते गुरु किवें समझा रहा है। तो कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया। तो आनंद की पहली परिभाषा इस पौड़ी के अनुसार हजूर आखदे ने जिस उत्ते प्रभु ने कृपा कर दी, गुरु ने कृपा कर दी, ओदे जीवन विचों किल विख कटे। किल विख पाप नूं कहंदे ने, विकारां नूं कहंदे। ओदे जीवन विचों किल विख कट दिते। भगत कबीर साहब ने एक बड़ा पवित्र श्लोक बख्शिया है। वो आखदे ने भी जिवें किसी जंग युद्ध के मैदान अंदर सूरमे किसी दूजे ते वार करदे, कोई तीरां दा वार करदा है, कोई तलवारां दा वार करदा है, ते कई बारी उस कीते हुए वार दे सामने जिहड़ा कोई योद्धा कोई सूरमा आ जांदा है ते किसी दी कोई बांह वड्डी जांदी है, किसी दी कोई लत्त वड्डी जांदी है, कदी किसी दी कोई धौन वड्डी जांदी है। शरीर के अंग जिहड़े ने वो कटे जाते ने, वड्डे जाते ने। तो भगत कबीर साहब जी आखते ने कि कबीर सतगुर सूझ में बाह्या बाण जो एक। सतगुरु भी एक अजिहा ही सूरमा है जिसने शब्द का एक तीर चलाया
लागत ही पुए गिर परया परा करे जे छेक। ओ मेरे हिरदे विच जा करके लगा है ते मैं जमीन ते डिग पिया ते कलेजे विच छेक पैदा हो गया। उस तीर का असर ऐसा होया, वो तीर है शब्द रूपी तीर, जिसने मेरा हिरदा विन दिता। उस शब्द का असर मैं कबूल किया। वो लगदे सार पहला मैं अहंकारी मत लै करके खलोता सां ते हुण निमरता वश पै करके जमीन ते डिग पिया। मेरे हाथ जुड़ गए, गुरु अगे तरला लेना मैं शुरू किया कि मेरे जीवन विच विकारां दे कारण करके मेरा जीवन निघार वाले पासे जाई जा रहा है। हंकार दे हौमे दे कारण करके मेरी प्रीत जिहड़ी है वो रब नाल नहीं बनदी, प्यार नहीं पिया बनदा। तो गुरु ने रहमत कीती, कृपा कीती ते उस शब्द रूपी तीर दे नाल मैनूं निमरता सिखा दित्ती। हंकार दूर कर दिता, निमरता सिखा दी ते ओदे प्यार दा अंदर एहसास होया, मानो परा करेजे छेक। तो सतगुरु भी एक सूरमा है जो इस तरह शब्द दे बाण चलाउंदा है। तो जिस वेले शब्द रूपी बाण चलदे ने ते फिर जो सामने आउंदा है ओदे फिर काम क्रोध लोभ मोह हंकार वाले मानो अंग जिहड़े ने कटे जांदे ने। कर किरपा किलविक कटे, ओदे पाप कटे जांदे ने। ये गुरु की रहमत हुंदी है, गुरु की कृपा हुंदी है। तो जिस व्यक्ति के मन विच पापां दा भाव नहीं रहा, पापां दी विचार नहीं रही, माड़ी विचार जिस विचों निकल गई है, तो वो व्यक्ति आख सकता है भी मेरे जीवन विच आनंद बनया है। पहला सब तो ये। फिर गुरु ने होर की कीता है, ज्ञान अंजन सारिया, उन्हें ज्ञान का सुरमा मेरी अखां विच पा दिता है। आनंद दी ये अगली परिभाषा है। अखां विच जिहड़ा सुरमा पाया जाता है, वो वैद हकीम जिहड़ा सुरमा बनाउंदे ने भी वो अखां दी रोशनी वधाउण वास्ते, अखां विचों गंदगी कढण वास्ते, सफाई करन वास्ते। पर दुनिया संसार का ऐसा कोई सुरमा नहीं बनया कि जिसनूं अख विच पाया जावे ते कोई व्यक्ति जिहड़ा है पराया रूप वेखना छड्ड देवे। अजिहा कोई सुरमा नहीं बनया। पराए धन उत्ते लालची बिरती नाल वेखे, इहदे तो छुटकारा पाउण वास्ते कोई सुरमा नहीं बनया। तो सतगुरु अज कृपा करके आखदे ने, आनंद की अगली गल ये सुनो भी गुरु ज्ञान का सुरमा दिंदा है ते जदों ये ज्ञान रूपी सुरमा इन्हां नेत्रां विच पैंदा है ते उदों फिर खलकत कायनात के सारे जीवां विच रब दा दीदार होना शुरू हो जाता है। जदों गुरु ज्ञान का सुरमा इन्हां नेत्रां विच पाउंदा है, इहदी निगाह ठीक कर दिंदा है, सही कर दिंदा है, उदों फिर अजिहा इहदे जीवन विच बदलाव आउंदा जिन्हों भाई गुरदास जी लिखते ने, देख पराइयां चंगियां मावां धीयां भैणां जाणै। इवें नेत्र ठीक करदा जी, इवें अखां दे विच ज्ञान का सुरमा पा करके ते उन्हां दी जोत भी सही करदा है ते उन्हां दा वेखना भी सही कर दिंदा है। वो जदों अपने तो छोटी उम्र दी कोई स्त्री वेखदे ने ते उहनूं धी समान समझदे, कोई बराबर दी नूं वेखदे ने ते उहनूं भैण दे समान समझदे ने, कोई वड्डी उम्र दी वेखे ते उहनूं अपनी मां दे बराबर जाणदे ने। ज्ञान अंजन सारिया, गुरु में ज्ञान का सुरमा पा करके अखां ठीक कर दिंदा है। उदों मनुख दे जीवन विच असल आनंद बनदा है। तो गुरु अमरदास महाराज मेहर करते हैं कि कर किरपा किल विख कटे, पापां दी विचार उहदे अंदरों दूर हो गई, पापां वाले मंदे कर्म वाले अंग मानो कटे गए ते ज्ञान अंजन सारिया ते ज्ञान का सुरमा उहदे नेत्रां विच पिया ते उहदी ये निगाह बिल्कुल ठीक हो गई। हुण सारिਆਂ विच रब दा दीदार करदा है। उहनूं फिर ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम कौ बन आई।
ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰਮਾ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰੇ, ਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰੀ ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁਰਮਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो गुरु अर्जन साहब महाराज आखते ने, ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञानता दे हनेरे दा उन्हें नाश ही कर दिता है। गुरु ने जो ज्ञान का सुरमा नेत्रां विच पाया तो फिर हर किरपा ते संत भेटिया, तो मेहर हुई, दया हुई ते संत रूप अर्थ गुरु नाल मुलाकात बनी। गुरु दे नाल जिहड़ी है वो बैठना मिल गया ते ओदे नाल आत्मिक जीवन विच वड्डी चढ़दी कला बनी है। नानक मन प्रगाश, मन विच पूर्ण तौर ते चानण बन गया है। तो गुरु अमरदास महाराज आखदे ने, एक ते किलविख पापां विचार ये कटी जावे ते दूजा सारे विच रब दा दीदार होना शुरू हो जावे। ज्ञान अंजन सारिया ज्ञान अंजन उन्हां नेत्रां विच पैंदा ते उन्हां नूं जीवन विच आनंद बनदा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਹ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਾਧਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਹ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੌਖਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।
कई बार असी ऐसा सुनिया है कि कोई फलाना संत कोई महापुरख बहुत घट बोलता है, तो विद्वान सज्जन आखते ने भी उन्होंने दे घट बोलण का एक कारण ही हुंदा है कि वो सिर्फ उन्नी गल बोलते ने जिन्नी गल उत्ते वो आप दृढ़ होण, इस करके उन्हों का बोल घट हुंदा है। साडे विचों बहुते वो गल्लां बोलते ने जिन्हां गल्लां उत्ते असीं आप पहरा नहीं देंदे। साडे वर्गे व्यक्ति बोलणगे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असीं आप झूठे। माया दे मोह दे विच नहीं पैना चाहिए, साडे विच मोह होर प्रबल होया पिया है। इस करके साडा जिहड़ा बोलना है ये अजाई ते वाधू, जिस विच साडे अपने अंदर कोई दृढ़ता कोई परिपक्वता नहीं है, सगों ये दृढ़ता साडे अंदर बने दी अरदास करनी चाहिए। आम तौर पर सियाने व्यक्ति आखते हैं भी तोल के बोलना चाहिए, भी जिस बोल दे नाल असीं प्रभु मालिक दे नेड़े हो सकीए जां किसी दूजे नूं रब दे नेड़े रख सकीए, इहो जिहा बोल बोलना चाहिए। भगत कबीर साहब जी ने बोलन बारे अपनी पवित्र बाणी दे विच एक वचन भी दिता है। वो आखदे ने, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रहिए। की बोल बोलना चाहिए है, अजिहा बोल बोलीए जिहदे नाल रब दे नाम नाल साडी सुरत जुड़ी रहे। फिर हजूर बाणी विच गुरु नानक साहब महाराज जी भी आखदे ने कि किसी नूं फिक्का बोल नहीं बोलना, किसी नूं माड़ा बोल नहीं बोलना। फिक्का बोल विगुचना, सुन मूर्ख मन अजान। तो हजूर अज गुरु अमरदास महाराज जी आखदे ने, जिन्हां उत्ते गुरु की रहमत हो गई उन्हां नूं इस आनंद की प्राप्ति हुई, ते आनंद विचों ये उन्हां नूं प्राप्त होया कि तिनका शब्द सच्चा सवारिया, उन्हां दा बोल सच्चे ने सवार दिता है। शब्द के दो अर्थ समुचा जीवन भी है ते बोल दा अर्थ बोल बाणी भी है। वो फिर जदों बोलते ने ते सच की गल ही बोलते हैं, भावें थोड़ा बोलन, और उन्हां दा बोल सच्चा भी हुंदा है, इस करके भी घट बोलते हैं। तो गुरु साहब जी मेहर कृपा करके सानू इत्थे जीवन जाच देंदे हुए आखरे ने कि जिन्हां दा अंदरों मोह टुट जांदा है उन्हां दा बोल सबर जांदा है, चंगा हो जांदा है। जिथे माया पदार्थां दा मोह है, लालच है, उथे ही मनुख दा बोल झूठा भी हुंदा है। उथे ही मनुख दा बोल कुछ वधा चढ़ा करके भी हुंदा है। जिथे माया दा मोह भी पदार्थ मेरे कोल रह जावे, चीज मैनू मिल जावे, इहदे बारे वो झूठ भी बोलदा भी मेरा है। इस करके हजूर कृपा करके आखदे ने ये भी आत्मक आनंद विच ही आउंदा है कि उन्हां दे बोल बचन सबर जांदे ने, चंगा बोल वो बोलदे। तो अखीर पंक्ति में सतगुरु जी फिर रहमत करके आखदे हन, कह नानक यह आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। तो यह है आनंद जिहड़ा गुरु तो जानिया जांदा है, गुरु तो समझिया जांदा है, जिस विच गुरु की रहमत कृपा वरती ते मनुख के जीवन विचों किलवे कट्टे गए। दुरत गवाया हर प्रभ आपे, सब संसार उभारिया। किलवे पाप जिहड़े ने उन्हां दे जीवन विचों कट्टे जांदे जिन्हां ते गुरु की रहमत हो जाती। फिर ज्ञान अंजन सारिया, ज्ञान रूपी सुरमा उन्हां दे नेत्रां विच पैंदा ते उन्हां दी वेखणी ठीक हो जाती है। फिर अंदरों जिनका मोह टुटा, माया मोह पदार्थां दे नालों अंदरों मोह उन्हां दा टुट जांदा है। तिनका शब्द सच्चा सवारिया, उन्हां दा बोल उन्हां दा जीवन सच्चे प्रभु मालिक ने सवार दिता है। तो फिर कह नानक ये आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। तो गुरु तो ये जानिया जाता है, गुरु तो समझिया जाता है। तो गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने इस पौड़ी विच जो जीवन जाच दी है, गुरु चरणों में असीं अरदास करनी है भी साडा जीवन सचमुच इस आनंद की प्राप्ति करे।
ਤੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। तो इस पौड़ी के उच्चारण बारे बेनती कह करके मैं समाप्ति करा। ये पौड़ी बड़े ध्यान नाल पढ़न वाली है। सब तो पहला तो इस पौड़ी के पहले दो अखर आनंद आनंद दो बारी आया ते आड़े कन्ने नाल आया। जदों असीं बहुत काहली दे नाल पाठ करते हैं तो आड़ा करना छड्ड जांदे हैं, आनंद आनंद सौ को कहे इस तरह पढ़ते हैं, पर नहीं ਇਹਦਾ आड़ा करना जरूर उच्चारण करना है। आनंद आनंद थोड़ा इस तरीके नाल। फिर अगली पंक्ति है, जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया। इत्थे भी फिर आड़े कन्ने नाल आनंद। कर कृपा किलवे कट्टे ज्ञान अंजन सारिया। इत्थे कृपा पूरे रारे नाल है। पहला है जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया। अद्धा रारा कृपा उच्चारण हुंदा है ते पूरे दा कृपा। फिर है अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चै सवारिया। सच्चै ये दुलावां दा पाठ। ते आखिरी पंक्ति कह नानक ये आनंद है। इत्थे हुण ध्यान करना है, जिहड़ा ये आनंद लिखिया है वो आड़े दे नाल कन्ना नहीं लग्या, इत्थे आनंद उच्चारण ही रहेगा। फिर नाल ही आनंद गुर ते जानिया, फिर आड़े कन्ने दे नाल है। तो उच्चारण के संबंध विच भी इस पौड़ी का पाठ करन लग्गियां सी इन्हां गल्लां दा जरूर ध्यान करना है। तो गुरु चरनां विच अरदास करनी है कि सचमुच सानू भी उस आत्मक आनंद की प्राप्ति होवे जिस आत्मक आनंद की गल गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी ने इस बाणी विच कीती है। तो गुरु के शब्द का अभ्यास ते गुरु के शब्द ते पहरा देने वाले गुरु के शब्द की कमाई करने वालियां नूं इस आनंद की प्राप्ति हुंदी है। गुरु रहमत करे कृपा करे असीं भी गुरु शब्द की कमाई करने वाले बनीए, गुरु शब्द नूं अपने जीवन का आधार बनाइए। समय की समाप्ति है, भुलां चूकां दी खिमा आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।